Let us discuss about the different seven important steps that involve during the biotechnology process. We know that biotechnology it is the technology in which the cellular parts, their proteins, peptides, DNA or RNA, different biomolecules, they are made to be usable for mankind और ह्यूमन काइंड, तो उसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो इस बायोटेक्नोलॉजी में चाहे कोई वैक्सीन हो या प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हो या कोई हार्मोन हो जिसे सिंथेसाइज करना है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम यूकैरियोटिक डिफरेंट तरह के प्रोटीन, हार्मोन, कोफैक्टर्स, इसे हम यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सिंथेसाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, insulin that's synthesized by the beta cells of Langerhans of the pancreas can be expressed in bacterial cell, can be expressed in bacterial cell, can be produced in bacterial cell। तो इसी को तो हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। तो ये कैसे होता है, इसके 7 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। ये 7 इंपॉर्टेंट स्टेप्स इसे हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसी 7 स्टेप्स में आपको कई सारे पॉइंट यहाँ पर क्लियर होंगे। इनमें से कई सारे जो बेसिक पॉइंट है उसे हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कौन कौन से, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या होता है, वेक्टर्स क्या होते हैं, इनके बारे में हमने पहले ही चर्चा की है। और कुछ इंपॉर्टेंट जो वीडियोस है वो हम इस वीडियोस के साथ लिंक में आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए, तो 7 स्टेप्स कौन से होते हैं उसके बारे में आपको बता दें। The 7 different steps involved in the steps of biotechnology is the isolation of DNA from the human or from any host. Then second one, restriction digestion of the DNA, restriction digestion of the DNA, restriction digestion of the DNA with the help of restriction endonuclease enzyme. Then third one is the ligation process. Ligation, it is the binding of the complementary binding of the DNA, sticky ends of the DNA with the complementary fragments or the ends of the vector is known as ligation. Then fourth one is the transformation. Okay, transformation क्या होता है? That is the transfer of the recombinant DNA into the host cell, and that host cell, it can be identified from the non-transformed cell with the help of that is the marker gene present on the vector. Then fifth one, culturing the transformed cell, culturing the Escherichia coli cell for the identification of transformed cells from untransformed cell culture. Fifth one, expression of the gene. Whether the gene is expressed or not can be identified by isolating the gene product from the bacterial cell. Then seventh one, identification of the gene product. जो जीन प्रोडक्ट एक्सप्रेस हुआ है उसका आइडेंटिफिकेशन, देन उसकी स्क्रीनिंग, रेगुलेशन वगैरह, ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करना। तो ये 7 इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, और इस स्टेप्स में हम जानेंगे कि कैसे यूकैरियोटिक जीन जो होते हैं, यूकैरियोटिक जीन ये प्रोकैरियोटिक सेल में कैसे एक्सप्रेस किए जाते हैं। दैट इज द होस्ट सेल। जो होस्ट सेल इस्तेमाल में लाई जाती है, उस होस्ट सेल को, दैट इज जनरली Escherichia coli is used as the host cell for the transformation purpose। तो ये 7 डिफरेंट जो स्टेप्स है, वो 7 डिफरेंट स्टेप्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो नाउ ये 7 स्टेप्स आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट वन पॉइंट। तो ये 7 स्टेप्स आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको ये पता चले। ओके,
तो चलिए वन बाय वन सारे ही स्टेप्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन, आइसोलेशन ऑफ द डीएनए। डीएनए आइसोलेट किया जाता है, ओके, फ्रॉम द ह्यूमन सेल। सपोज किसी ह्यूमन का जीन प्रोडक्ट वगैरह अगर कोई आइसोलेट करना है, उसका प्रोडक्ट अगर बनाना है बायोटेक्नोलॉजी के टेक्निक से, तो हम डीएनए आइसोलेट करेंगे फ्रॉम द ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल से डीएनए आइसोलेट करने के बाद, after that, the DNA is broken down into the smaller fragments with the help of, that is, restriction endonuclease. These restriction endonuclease, they break down the DNA at specific palindromic gene sequence that is known as the restriction site. Then, with the help of the same restriction endonuclease, the vector molecule is also can be cleaved or can be restricted, digested. ये जो वेक्टर मॉलिक्यूल है उसे भी सेम तरह के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। और ट्रीट करने पर उसके जो हैंगिंग एंड, उसके जो एंड्स फॉर्म होते हैं वो इस बैक्टीरियल के हैंगिंग एंड्स के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ओके, सो फिर इसमें आसानी किस लिए होगी, थर्ड स्टेप में बहुत आसानी से ये जो हमारे डीएनए फ्रैगमेंट्स है वो इस हमारे, दैट इज वेक्टर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो जाएंगे। बच्चों, एक इंपॉर्टेंट स्टेप्स यहाँ पर रह गई है, फोर्थ में एक स्टेप होती है जिसे हम कहते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग करना, ये जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है, ये जो डीएनए फ्रैगमेंट है, ये हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं। ओके, उसे चेक करना, जीन ऑफ इंटरेस्ट, वेदर दे आर our gene of interest, whether they are our gene of interest is not, whether they are gene of interest or not, that can be checked with the help of different technique like electrophoresis technique as well as the dot hybridization technique, etc. तो इस टेक्निक से हम इन फ्रैगमेंट्स में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है या नहीं उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक आई है जिसे हम माइक्रो एरे कहते हैं, जिसमें हमें मिलियंस ऑफ जीन सीक्वेंस में से हम हमारा जो जीन सीक्वेंस है उसे आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दैट इज द स्क्रीनिंग टेक्निक। यहाँ पर हमने स्क्रीनिंग यहाँ पर लिखा नहीं है, वो एक्चुअली वो फोर्थ नंबर पर आना चाहिए। सो सपोज इस जीन डीएनए फ्रैगमेंट में हमारा जीन सीक्वेंस प्रेजेंट है, ऐसा हमने स्क्रीनिंग में पाया है। तब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, फिर हम इस जीन सीक्वेंस को हम लाइगेशन करेंगे। लाइगेशन का मतलब होता है, लाइगेशन इज द बाइंडिंग ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट और कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट विद द कॉम्प्लीमेंट्री जीन सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन द वेक्टर। वेक्टर की जो खास बात है वो हमने आपको पहले भी बताई है, फिर से एक बार वो बात आपको बता दे। What is the quality of the vector? Vector is known as molecular vehicles that carry the gene of interest. Second one, vector has the origin sequence that perform multiplication of the gene of the interest. Third one, the vector contains the restriction site. It also contains the marker gene sequence for the identification of transformed cell from non-transformed cell. Then fifth one, these these marker gene sequences, they are present in the form of antibiotic resistance gene, and that can be identified by using the insertional inactivation process. ये restriction insertional inactivation process क्या होती है उसे समझने के लिए हम जो लिंक देंगे उसे आपको देखना होगा। देन फिर लाइगेशन कैसे किया जाता है, ये जो डीएनए फ्रैगमेंट जिसे हमने स्क्रीन किया है, जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है या नहीं, उसके लिए सपोज यहाँ पर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है। ओके, तो इसे हम इस वेक्टर के साथ लाइगेज इंक्यूबेशन करेंगे। इंक्यूबेशन करते समय लाइगेज एंजाइम के द्वारा ये जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इस वेक्टर के कॉम्प्लीमेंट्री जीन सीक्वेंस के साथ बाइंड हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग होगी और लाइगेशन एंजाइम ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म करेगा with the hanging ends and the hanging ends of the
gene of interest with the hanging ends of the our मैस अवर वेक्टर वेक्टर के हैंगिंग एंड्स और हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के हैंगिंग एंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण लाइगेज एंजाइम के द्वारा ये एक दूसरे के साथ बाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग फॉर्म करेंगे और इसी को हम कहेंगे दैट इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसलिए कहा जाएगा क्योंकि ये जो वेक्टर मॉलिक्यूल है ये रेड से इंडिकेट कर रहे हैं और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसे हम ब्लू से इंडिकेट कर रहे हैं। तो जो ब्लू मॉलिक्यूल है वो फॉरेन डीएनए है और जो रेड मॉलिक्यूल है वो हमारा वेक्टर है। सो वेक्टर मॉलिक्यूल में जो फॉरेन डीएनए यहाँ इंसर्ट हुआ है इस वजह से इन सभी को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। that is the recombinant DNA molecules. And these recombinant DNA molecules, ये हुआ हमारा that is the ligation process. Then, so ligation process, okay, that is isolation, restriction, digestion, then screening, then ligation process, then transformation. अब ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? हमने ऑलरेडी ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में डिस्कस किया था जो आर सेल दे आर ट्रांसफॉर्म इनटू द एस स्ट्रेन ऑफ द डिप्लोकोकस निमोनी, ओके, देन that is known as the transformation. The insertion of the DNA or the fragments of the DNA or the gene from medium into the bacterial cell, it transforms the strain of the bacteria. That is known as transformation. तो यही ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमें यहाँ पर करना होगा। इशेशिया कोलाई इज यूज एज द होस्ट सेल। तो यहाँ पर आपको ये होस्ट सेल नॉर्मल होस्ट सेल इशेशिया कोलाई ली गई है और इस नॉर्मल इशेशिया कोलाई सेल का ये है जीनोमिक डीएनए। ओके, दिस होस्ट सेल इज नोन एज दैट इज द competent host cell. Competent host cell is that cell that easily welcomes welcome the recombinant DNA, that do not harm the recombinant DNA, that perform the replication of its own genome, and that do not harm the replication of the foreign genome, that is recombinant DNA. तो उसे हम कहते हैं that is competent host. Or competent hosts do not contain any types of the enzymes or the protein factor that harm or break down the foreign DNA, recombinant DNA. तो ऐसी होस्ट सेल को हम कॉम्पिटेंट होस्ट सेल कहते हैं। फिर जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन में होगा क्या, ये जो लाइगेटेड जीन, ये जो लाइगेशन के बाद जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसे हम इस इशेशिया कोलाई के माइक्रोपिपेट ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। ये नॉर्मल इशेशिया कोलाई सेल है और जब हम ये वेक्टर्स विद द डीएनए दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला जो सॉल्यूशन है, ओके, जिसमें ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, वो सॉल्यूशन को हम इस इशेशिया कोलाई के कल्चर के साथ यहाँ पर लाइगेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इंक्यूबेशन पीरियड के लिए रखेंगे। Now we know that there are different types of transformation process, but the most of the time the the chemical method with the help of calcium chloride method, the transformation procedure is carried out. इसके अलावा that is शॉटगन मेथड भी होती है, that is टंगस्टन या गोल्ड पार्टिकल्स जो होते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, या फिर दैट इज द इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड भी होती है जो इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा यूज में लाई जाती है। साथ ही साथ इसके अलावा दैट इज लिपिड मॉलिक्यूल्स के द्वारा भी लाइपोसोम्स के द्वारा भी जीन ट्रांसफर किया जाता है। तो कई डिफरेंट तरह के टेक्निक्स है जिसके द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर यानी जीन ट्रांसफर प्रोसीजर की जाती है। सो अब ये ट्रांसफॉर्म सेल है। अब यहाँ पर जहां पर हमारा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जाएगा उसे हमने आपको ऑलरेडी कहा है कि इस इंसर्शनल इनएक्टिवेशन प्रोसेस के द्वारा हम अब क्या करेंगे, अब हम कल्चरिंग करेंगे जो हमारे यहाँ पर
जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है वो ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, यानी जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये इस होस्ट के भीतर इंटर हुआ है या नहीं, इसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कल्चरिंग करना होगा। और कल्चरिंग करते समय हमें, दैट इज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होती है जिसके द्वारा हम ट्रांसफॉर्म सेल को नॉन ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर सॉरी अनट्रांसफॉर्म हो गया, उसे हम नॉन ट्रांसफॉर्म लिखना होगा। ट्रांसफॉर्म सेल को नॉन ट्रांसफॉर्म सेल से आइडेंटिफाई करना होगा। ओके, और इसे करने के लिए हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उसे आपको देखना होगा, जिसमें आपको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ओके, देन मास्टर प्लेटिंग और दैट इज रिप्लिका मेथड के द्वारा उसे समझाने की कोशिश की गई है। ओके, सो चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। सपोज यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल रहा और हमने हमारे जो ट्रांसफॉर्म सेल को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। ओके, फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्म सेल से हमने आइडेंटिफाई कर लिया है सपोज, ठीक है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल रहा। देन अब कल्चरिंग होने के बाद ये सारे ट्रांसफॉर्म सेल्स हैं और ये ट्रांसफॉर्म सेल जो है ये अपनी क्वांटिटी बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ाएंगे, एक के दो, दो के चार, चार के आठ, इस तरह से ज्योमेट्रिक ग्रोथ होगा और ढेर सारे यहाँ पर इशेशिया कोलाई के बैक्टीरिया मिलियंस ऑफ कॉपीज फॉर्म होंगे। यानी ये प्रोसेस इसलिए करनी है ताकि हमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसकी हमें मिलियंस ऑफ कॉपी मिलेंगे बच्चों। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रोडक्ट है दैट इज इंसुलिन, सपोज ये जो इंसुलिन प्रोडक्ट है वो अगर एक बैक्टीरिया से या इन चंद बैक्टीरिया से अगर हम आइसोलेट करेंगे तो वो मिलीग्राम भी नहीं आएगा। और मिलियंस ऑफ पीपल को इंसुलिन का अगर इंजेक्शन प्रोवाइड करना है तो हमें हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के मिलियंस ऑफ कॉपी चाहिए, ट्रिलियंस ऑफ कॉपी चाहिए। फिर उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में इसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा बायोरिएक्टर में। ओके, तो इसी वजह से ये क्लोनिंग मेथड करनी चाहिए। इसी वजह से इस तरह के जो ये ट्रांसफॉर्म सेल है इनके मिलियन ट्रिलियंस ऑफ क्लोन बनाए जाते हैं ताकि हमें बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट, जीन प्रोडक्ट मिल सके। फिर लास्ट में एक्सप्रेशन ऑफ द जीन। अब हमारा जीन एक्सप्रेस हुआ है या नहीं उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, डिफरेंट 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 जीन प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के डिफरेंट जीन टेक्निक्स हैं, अलग अलग टेक्निक होते हैं अलग जीन प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो जीन एक्सप्रेशन हुआ है या नहीं उसे हम यहाँ पर इस सेल के भीतर जो जीन का प्रोडक्ट दैट इज इंसुलिन इसमें एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं वो हम चेक करेंगे, ठीक है। और फिर उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी, आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा वेदर these product produced inside the host cell whether it is of the same type or the like that of the human being or not, ह्यूमन बीइंग की तरह ही ये प्रोडक्ट है या नहीं उसकी चेकिंग वगैरह की जाएगी। so that is the testing process, okay, which is carried out after the successful transformation process। तो इस तरह से बच्चों ये ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज बायोटेक्नोलॉजी में जो जीन सीक्वेंस जो डीएनए में होता है उसके मिलियंस ऑफ कॉपी बनाए जाते हैं और इस कॉपी से इसका जीन प्रोडक्ट आइसोलेट कर कर उसे बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज में लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर कर उसे प्रोसेसिंग कर कर फिर उसे मार्केट में दिया जाता है, ह्यूमन यूज के लिए मार्केट में स्प्रेड किया जाता है। तो बच्चों ये था बायोटेक्नोलॉजी के इम्पोर्टेंट स्टेप्स जो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप्स है जिसे हम आपको याद रखना होगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो